Hello, lovely people. Good wishes and a warm welcome to all. So, here we are with another lecture on matrices. In the previous lecture, we discussed about the rank of a matrix, how to find out the rank of a matrix by reducing the matrix to different forms like echelon form, normal form, or triangular form. So, there we clearly understood how to find out the rank of a matrix using different methods. Here we have the topic solution to the system of linear equations. Now we will be having a system of linear equations, whether it be a homogeneous system or inhomogeneous system. Both of these cases, we will be studying about how to find out the solution to them by using whatever we have studied till now. In the previous lectures, when we discussed about determinants, then we used Cramer's rule to find out the solution to the system. Then, after studying about the inverse of a matrix and the methods to find out the inverse, we applied that concept again to find out the solution of linear equations. Similarly, we will be using rank concept also to find out the solution of linear equations. So basically, whatever we are studying here, different topics, we are just applying them to find out the solution of system of linear equations. So before going towards the methods, first of all, let us have some of the basic points related to the system of linear equations. So before moving further, let us see some of the basic points regarding to the system of linear equations. First of all, linear equation क्या होती है? एक ऐसी equation which is of first degree in all the unknowns, that is known as a linear equations. यानी कि एक particular equation में बहुत सारे variables होते हैं. अगर सभी वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 हो देन दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की होगी? जनरल लीनियर इक्वेशन इज रिटन लाइक दिस. इन दिस केस x1 x2 अप टू xn, दीज आर ऑल वेरिएबल्स. अगर इन सभी वेरिएबल्स या सभी अननोन्स की मैक्सिमम पावर देखी जाए, all are having the maximum power 1, and that is why this is a linear equation. एक जनरल लीनियर इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Now, what is a system of linear equations? System of linear equations को हम लोग linear system भी बोलते हैं. What is it? कि बहुत सारी linear equations को एक साथ हम लोग solve करें या फिर बहुत सारी linear equations एक साथ लिख दें, then that is known as a system of linear equations. यानी कि जिस तरह से ये one जो है, that is the system of linear equations, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी linear equations हैं. यहाँ पर total number of variables या unknowns देखेंगे तो that will be n. And number of such type of equations, such linear equations are total m in number. So यहाँ पर this is one is the system of linear equations. Now इस system of linear equations की अगर मैं बात करूँ तो there are various terms here. First of all, xi's. यहाँ पर in general these xi's where I goes to 1 to n. Total n unknowns हैं. x1, x2 up to xn. These xi's are known as unknowns. They are the unknowns or the variable terms जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट इज these aij's. aij's यानी कि a11, a12, ये सभी वेरिएबल टर्म्स जो होंगी, जो भी अननोन टर्म्स हैं, उनके साथ कुछ नंबर्स हैं. ठीक है, उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ नंबर्स हैं. ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज द कोफिशिएंट्स. सभी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं, सो सिंपली नंबर्स हैं, दीज आर नोन एज कोफिशिएंट्स. नाउ वी हैव this constant terms b1 b2 up to bm, जिन्हें हम जनरली हमने नाम दे दिया bj's. these are the constant terms. एक पर्टिकुलर इक्वेशन में वेरिएबल टर्म्स भी होती हैं और कांस्टेंट टर्म्स भी होती हैं, तो these constant terms constitute these bj's. b1 b2 up to bm, these are m in numbers and they are constant terms. Now depending upon the value of bj's, we are having two types of system of linear equations, either homogeneous system or the non-homogeneous system. Now homogeneous system क्या होता है? अगर सभी constant terms zero हो जाए, यानी कि all the bj's are zero. If all the bj's are zero, then the system reduces to a homogeneous system. That means इस टाइप की जो linear system होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? Homogeneous system. If all the constant terms are simultaneously zero. But at least अगर हमें एक नॉन जीरो बीजे मिल जाता है, then we say that the system is a non-homogeneous system. यानी कि जितने भी बीजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर b1 to bm, तो इन सभी बीजेस में कोई भी एटलीस्ट एक नॉन जीरो बीजे हमें मिल गया, एक नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म अगर मुझे मिलती है इन सभी लीनियर इक्वेशंस में, then we will say that this whole of the system of linear equation is a
नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जो होमोजीनियस सिस्टम होता है इट विल ऑलवेज हैव अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ सभी कांस्टेंट टर्म जीरोस होंगी, तो द ट्रिवियल सॉल्यूशन विल बी ऑल द अननोन्स इज इक्वल टू जीरो। ट्रिवियल सॉल्यूशंस का यहाँ पर क्या मतलब है कि जितने भी अननोन्स है, जितने भी वेरिएबल टर्म्स है वो जीरो है। फॉर एग्जांपल इस केस में इफ ऑल द बीआईज आर जीरो, लेट अस से ये सभी बीआईज जीरोस है, b1 भी जीरो है, b2 भी जीरो है, bm भी जीरो है, सभी जीरोस है। अगर यहाँ पर मैं x1 x2 xn इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को जीरो पुट कर दूं, देन व्हाट विल हैपन, अगर मैं x1 x2 अप टू xn इन सभी को जीरो पुट कर देती हूँ, सो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा इस पूरे सिस्टम का दैट विल बी जीरो, अगर मैं x1 x2 अप टू xn इन सभी को जीरो पुट कर दूं। एंड राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी जीरो एज्यूम कर रखी थी, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट होमोजीनियस सिस्टम, तो राइट हैंड साइड भी जीरो एंड लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो। दिस मीन्स फॉर दीज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेटिस्फाइड, यानी कि x1 x2 xn जितने भी अननोन्स है उसको अगर मैं जीरो कर दूं, then whole of this system will be satisfied, or we can say that x1 x2 up to xn यानी कि all unknowns is equal to zero is a solution to this system which is a homogeneous system. तो homogeneous system के केस में all unknowns is equal to zero, this is known as the trivial solution and it will always have a trivial solution, क्योंकि हमेशा जब भी हम लोग जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको जीरो रख देंगे तो ऑलवेज द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम होमोजीनियस इक्वेशंस विल बी सेटिस्फाइड। तो इस वजह से हमने कहा कि होमोजीनियस सिस्टम जो होता है इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट बिकॉज इट विल ऑलवेज बी हैविंग अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। नाउ वी हैव द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है, जब भी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो बिकॉज वी आर स्टडिंग मैट्रिसेस, तो हम क्या करते हैं, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, इस पूरी सिस्टम को एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ax इज इक्वल टू बी टाइप की एक मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं आउट ऑफ दिस सिस्टम। क्योंकि हमें मैट्रिसेस की हेल्प से इसे सॉल्व करना है, इस वजह से हमने इसे एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। दिस इक्वेशन इज ax इज इक्वल टू b। दिस मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है इट इज द अनदर वे टू राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। या तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिख लो, या फिर इसके प्लेस पे हम इसे एक मैट्रिक्स इक्वेशन ax इज इक्वल टू b टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Now, what is a here, x and b क्या है, ये सभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैट्रिक्स है, a x and b all these are matrices। इस वजह से ये जो इक्वेशन हमारे पास आती है दिस इज नोन एज अ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द सिस्टम 1। इट मींस this whole of the system, whether it is homogeneous or non-homogeneous, it will be represented by using a matrix equation in which all these are matrices, ax and b are matrices. So ax is equal to b is a matrix equation of the system 1। अब यहाँ पर ये जो matrices हैं ये इन्हीं नंबर से बनती हैं, जो वेरिएबल टर्म्स हैं उसकी हेल्प से हम लोग x मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स से मैट्रिक्स b बनाते हैं, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं कोफिशिएंट्स हैं, जितने भी वेरिएबल टर्म के साथ कोफिशिएंट्स हैं उनकी हेल्प से हम लोग मैट्रिक्स A बना देते हैं। फॉर एग्जांपल द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ 1 दिस इज रिटन लाइक दिस, ax इज इक्वल टू b। नाउ व्हाट इज A? A यहाँ पर एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है। A यहाँ पर क्या है, एक m क्रॉस n मैट्रिक्स जिसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, और यहाँ पर हम एज्यूम करके चलते हैं कि ऑल द aij's आर नॉट जीरो। यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स A कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, जितनी भी कोफिशिएंट टर्म्स हैं वेरिएबल्स के साथ, जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं उन सभी कोफिशिएंट्स को कॉलम वाइज अगर हम लोग लिख देते हैं देन वी गेट अ m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, बिकॉज दिस वाज द सिस्टम ऑफ m इक्वेशन इन n अननोन्स, जिस वजह से हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स आती है। इफ m इज इक्वल टू n देन वी गेट a एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बट यहाँ पर जनरल केस की बात हो रही है तो m इक्वेशंस हैं बट नंबर ऑफ अननोन्स आर n। तो यहाँ पर हमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिलती है A, that is m cross n matrix and it is formed from the coefficients of all the variable terms। तो यहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ये सभी कोफिशिएंट्स को कॉलम वाइज इस तरह से एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, देन वी गेट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स A। सिमिलरली वी आर हैविंग द मैट्रिक्स x here। मैट्रिक्स x कैसे बनती है, x बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल्स को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल टर्म्स हैं बिकॉज x1 x2 अप टू xn these xi's आर द वेरिएबल टर्म्स ऑफ दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
तो हम क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल टर्म्स हैं, जितने भी अननोन्स हैं, उन सबको एक कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड वी मेक अ कॉलम मैट्रिक्स आउट ऑफ इट व्हिच इज नोन एज द मैट्रिक्स एक्स। बेसिकली ये मैट्रिक्स एक्स ही होती है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है व्हेन वी टॉक अबाउट सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जितने भी वेरिएबल टर्म्स थे उन्हें हमने कॉलम वाइज लिखकर मैट्रिक्स एक्स बना ली। नाउ वी आर हैविंग द मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी कैसे बनती है, कांस्टेंट टर्म्स से। भी कांस्टेंट टर्म्स हैं, these constant terms are were represented by bj's। जितने भी bj's हैं उन सबको कॉलम वाइज हम लोग लिख लेंगे एंड वी विल फॉर्म अ मैट्रिक्स आउट ऑफ इट। तो हमारे पास एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स बी। तो ए मैट्रिक्स को हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, एक्स इज द वेरिएबल और अननोन मैट्रिक्स, एंड बी को हम कांस्टेंट मैट्रिक्स बोल देते हैं बिकॉज इट इज फॉर्म फ्रॉम कांस्टेंट टर्म्स। नाउ आफ्टर दिस मैट्रिक्स ए एक्स एंड बी, एक और टाइप की मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स ए कॉलन मैट्रिक्स बी और उसके बाद होल ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर रख देते हैं, फिर बीच में कॉलन का साइन लगाते हैं, दिस इज द साइन ऑफ कॉलन। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट, हर एक रो के साथ हम लोग कॉलन का साइन लगाएंगे, द एलिमेंट्स ऑफ ए देन कॉलन साइन देन द एलिमेंट्स ऑफ बी, और इस सभी को एक मैट्रिक्स में इनक्लोज कर देते हैं। सो दिस टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। दीज आर सिंपल मैट्रिसेस, बट यहाँ पर ए कॉलन बी की जो ये मैट्रिक्स है दिस इज नोन एज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको हम किसी भी टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सिंपली इसको हम सी नाम दे सकते हैं, डी नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, बट दिस ए रेशो बी और यू कैन से दैट ए कॉलन बी is the augmented matrix, and this augmented matrix determines the system completely। यानी कि जो हमने linear equations का system पढ़ा, that system is determined completely using this augmented matrix। क्यों? क्योंकि augmented matrix में coefficient, सभी के सभी coefficients आ रहे हैं प्लस constant terms भी आ रहे हैं। और अगर मैं system of linear equations की बात करूं तो वहां पर क्या है, यहाँ पर all the aij's are numbers, ठीक है, all the bj's are numbers। तो टोटल जितने भी नंबर्स यहाँ पर लीनियर सिस्टम में है, वेरिएबल्स को छोड़कर कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स आर देयर, एंड जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है, दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं, जितने भी कांस्टेंट टर्म है, सभी इंक्लूडेड हो जाती है। इस वजह से दिस डिटरमिन्स द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंप्लीटली। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम को हमें सॉल्व करना है। व्हाट डज दिस मीन? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर जितने भी अननोन टर्म्स हैं उन सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ऑल द अननोन्स आर एक्साइज, जितनी भी एक्साइज है वेयर आई गोज टू 1 to n, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स आर n। तो ये जितने भी x1 x2 अप टू xn टर्म्स हैं, जितने भी अननोन्स हैं, उन सबकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना सच दैट all these linear equations are satisfied simultaneously, ठीक है। those values of xi's are known to be the solution of this linear equations। यानी कि xi's की ऐसी values find out करनी है जिनको अगर मैं इन सभी equations में put करूं तो ये सभी equations simultaneously एक साथ satisfy हो जाएं। तो those values of xi's are known to be the solution of linear equations, क्योंकि उन्हें अगर हम लोग put कर देते हैं इस पूरे सिस्टम में, then all these linear equations are satisfied simultaneously। तो अगर मैट्रिक्स, ये तो सिंपली लीनियर इक्वेशंस की टर्म्स में था, अगर मैट्रिक्स इक्वेशन की टर्म्स में हम लोग इस चीज को देखें तो दिस इज व्हाट, हमारे पास एक अननोन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। मैट्रिक्स एक्स में सभी अननोन वैल्यूज हैं। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स एक्स, दिस इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जब हम लीनियर इक्वेशन से एक मैट्रिक्स इक्वेशन बना देते हैं तो मैट्रिक्स इक्वेशन में दिस x जो कि अननोन से बनी हुई मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, इस x का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि क्योंकि हमें x1 x2 अप टू xn की वैल्यू चाहिए, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x। मैट्रिक्स x की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो ये सभी अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी, एंड हेंस वी विल गेट द सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सेकेंडली, यहाँ पर जो मैट्रिक्स x एंड b है, दीज आर कॉलम मैट्रिसेस। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी वांट दिस इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड। ये जो प्रोडक्ट
ax है, this product ax will be it will be defined only if x is a column matrix. और अगर x एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसको m क्रॉस n मैट्रिक्स को इस टाइप की एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन रिजल्ट वी आर गेटिंग अ कॉलम मैट्रिक्स, एंड दैट इज व्हाई b इज आल्सो कॉलम मैट्रिक्स इंस्टेड ऑफ अ रो मैट्रिक्स. तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x and b आर कॉलम मैट्रिसेस. Next, we are having here the geometric interpretation, existence and uniqueness of solutions. अब एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जितने भी अननोन्स है उसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है such that all the linear equations are satisfied simultaneously. Now, what does this mean geometrically? इसका मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकली, वो चीज हम देखते हैं. तो वी नीड टू फाइंड आउट कि जो भी सॉल्यूशंस आते हैं वो उनकी यूनिकनेस, वो एग्जिस्ट करेंगे या फिर नहीं, और उनकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है. आई हैव पुट m and n is equal to 2. यहाँ पर हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वी हैव दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो यहाँ पर बिकॉज इट इज m इक्वेशंस इन n अननोन्स, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स आर n एंड टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस इफ वी से दिस इज m. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के लिए मैं क्या करती हूँ, टू इक्वेशंस इन टू अननोन्स की बात करते हैं. लेट अस से यहाँ पर हम लोग सिर्फ दो ही इक्वेशन ले लेते हैं विच आर हैविंग टू अननोन्स, m और n की वैल्यू को टू पुट कर देते हैं, देन वी विल ज्योमेट्रिकली सी व्हाट डज द सिस्टम मीन्स. ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी m और n की वैल्यू को हम लोग टू पुट करेंगे यहाँ पर, तो सिर्फ x1 और x2 वेरिएबल वाली टर्म्स यहाँ पर रह जाएंगी और दो ही इक्वेशन यहाँ पर लेफ्ट रिमेनिंग रहेगी जिनकी हेल्प से हम लोग ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे. तो दिस इज द सिस्टम 1. सिस्टम में m एंड n की वैल्यू को अगर मैं टू पुट करूं, यानी कि इफ वी सी टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देन द सिस्टम विल बिकम लाइक दिस. यहाँ पर x1 और x2 सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होंगे, तो मैट्रिक्स x वुड बी दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एंड यहाँ पर टू ही इक्वेशंस बच जाएंगी अगर m और n इज इक्वल टू टू इक्वेशंस इन टू अननोन्स की अगर हम बात करें तो. अब नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशंस हियर. नाउ अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड इक्वेशन नंबर 3 इट इज आल्सो लीनियर इक्वेशन. ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन ज्योमेट्रिकली से रिप्रेजेंट करती है एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग 3x + 4y = 5, इस टाइप की एक जो इक्वेशन है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज ऑल द अननोन्स आर हैविंग मैक्सिमम डिग्री 1. तो इस टाइप की ये जो इक्वेशन है ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. तो वहीं से यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 both are representing straight lines and they are having the variables x1 and x2. यहाँ पर जो variables हैं x and y है in this example, but in general case the variables are x1 and x2 and these are linear equations in x1 and x2 which are representing the straight lines. equation 2 भी एक straight line को represent करती है and equation 3 भी एक straight line को represent करती है. If x1 and x2 are the coordinates in x1 x2 planes, अगर मैं x1 x2 जिस तरह से अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन को मैं प्लॉट कर सकती हूँ इन xy प्लेन. इफ दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, तो यहाँ पर इस टाइप की एक स्ट्रेट लाइन जो है होगी, दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट दिस स्ट्रेट लाइन इन xy प्लेन. एंड बिकॉज सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस जो हैं वो x1 और x2 वेरिएबल्स के केस में है, इस वजह से हमारे पास एक x1 x2 प्लेन होगा. x1 x2 प्लेन में अगर मैं इन लाइंस को ड्रॉ करूंगी so they will represent some straight lines. एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के केस में हमें पता है तीन टाइप के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं. either the system will have a unique solution or it will have infinitely many solutions or it will have no solutions. यानी कि solutions का मतलब क्या, यहाँ पर x1 and x2 की वैल्यू, यानी कि मेरे पास x1 और x2 की इस तरह की वैल्यूज बन सकती हैं such that कि इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन मेरे पास मिले, या फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाएं, या फिर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन ना मिले x1 और x2 की वैल्यू का जिससे ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड हो. तो ये जो सिस्टम होगा टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स का, ये जो सिस्टम है इसके पास तीन टाइप के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं.
या तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल, या फिर कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। मींस x1 और x2 का ये जो कॉम्बिनेशन है, x1 x2 की वैल्यूज का जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन नहीं मिले, या फिर ये केस भी हो सकता है कि एक ही कॉम्बिनेशन मिले। तो इसी चीज को, इन सॉल्यूशंस को हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इन इक्वेशंस का मतलब तो हमें पता चल गया, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 ज्योमेट्रिकली दे रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइंस। अब इनके सॉल्यूशंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मैं ये कहती हूँ कि इस सिस्टम के पास एक यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, व्हाट डज दैट मीन? बेसिकली दीज सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइंस। क्योंकि यहाँ पर x1 x2 प्लेन में मान लेते हैं, let us say this is straight line represented by equation number 2 and this straight line is represented by equation number 3। तो इस तरह से हमारे पास दो लाइंस आएंगी। नाउ इन दोनों लाइंस के बीच का जो रिलेशन होगा वो हमें सॉल्यूशन से पता चलेगा। अगर इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब होगा कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इफ दिस सिस्टम इज हैविंग ओनली अ यूनिक सॉल्यूशन, हमें सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा x1 और x2 की वैल्यूज का, सच दैट both these equations are satisfied simultaneously, देन हम ये बोलेंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट करती है। एक सॉल्यूशन मिलने का मतलब ये है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी। नाउ नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? नो सॉल्यूशन का मतलब है कि लाइंस आर पैरेलल। ज्योमेट्रिकली इफ दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब होगा कि ज्योमेट्रिकली ये दोनों लाइंस स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और वो दोनों स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो पैरेलल है टू ईच अदर। एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मींस कि लाइंस जो हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं x1 x2 जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इफ दिस सिस्टम इज हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, दिस मींस कि बोथ द लाइंस, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से जो भी लाइंस हमें मिल रही हैं वो बोथ द लाइंस आर कोइंसाइडिंग ईच अदर। यहाँ पर एक सिस्टम ले लिया मैंने, x1 और x2 में दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, दिस इज अ सिस्टम। नाउ इस सिस्टम का सॉल्यूशन जो होगा वो एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो x1 x2 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन, एंड सेकंड इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन से। तो अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, दिस मींस कि इस सिस्टम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग अनदर सिस्टम। इस सिस्टम के केस में देखें और लाइंस ड्रॉ करें, बिकॉज दीज आर स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस को ज्योमेट्रिकली हम ग्राफ पे प्लॉट करें और उन लाइंस से हमें क्या पता चलेगा? बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल, इट मींस इस सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह से ये जो भी लीनियर इक्वेशंस हैं उनको स्ट्रेट लाइन से अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट कर दूं, तो जो भी लाइंस होंगी उन लाइंस के बीच में जो भी रिलेशन है दैट विल रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। यहाँ पर दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, बोथ दीज लाइंस आर कोइंसाइडिंग। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि the system will have infinitely many solutions। तो यहाँ पर हमने जो भी एग्जाम्पल लिया, टू सिस्टम टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एग्जाम्पल लिया, जिससे हमने ज्योमेट्रिकली सिस्टम को रिलेट कर दिया। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर रिलेटेड थ्रू द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस which are represented by these linear equations। Similarly, हम लोग three system in three variables, three linear equations in three variables के केस में भी दे सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर three variables हों और three equations हों, तो उस केस में lines की जगह पर planes आ जाएंगे। Each of this linear equation will represent a plane, and उन planes के बीच की जो भी relation होगी उससे हमें solutions मिलेंगे। उनके corresponding हम लोग यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की केस को डिस्कस कर सकते हैं। ये सिंपली एक एग्जांपल था कि किस तरह से एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लाइन से, प्लेन से और ज्योमेट्रिक टूल्स के साथ रिलेट करके हम लोग इनके जो सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। So this was the geometrical interpretation and existence and uniqueness of solutions। कि ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करके, वेदर इट बी लाइन की टर्म्स में इसको प्लॉट कर सकते हैं या प्लेन्स की टर्म्स में, जितनी नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, these individual linear equations will represent either lines or planes or other geometric tools। एंड उनके बेस पर वो जो भी ज्योमेट्रिक टूल्स हम लोग यूज करेंगे, लाइंस या प्लेन्स या एक्सेट्रा कुछ भी,
तो उनमें जो भी रिलेशंस होंगे उन रिलेशंस से हम लोग ग्राफ की हेल्प से ही बता सकते हैं कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे. दिस वाज द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन. नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब डिपेंडिंग अपॉन कि लीनियर इक्वेशंस का जो भी सिस्टम है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता, we have classified the system of linear equations into two categories, either consistent system or inconsistent. एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंसिस्टेंट तब बोलेंगे अगर इट विल हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. अगर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन ऐसा मिलता है, कम से कम हमारे पास एक कॉम्बिनेशन तो अननोन्स का मिलता है जिसके लिए ऑल द लीनियर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, देन वी से दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. नाउ दो केसेस में हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट बनता है, अगर सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो. फॉर एग्जांपल अगर इस सिस्टम की बात करें, टू इक्वेशन एंड टू अननोन्स का सिस्टम, ये एग्जांपल लिया, इस केस में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इट इज दिस x is equal to 4 and y is equal to 3. So because it is having unique solution, then the system will be a consistent system. Similarly यहाँ पर अगर मैं second system की बात करूं, so this system is having infinitely many solutions and these solutions are given by these two values of x and y. So this system is also consistent क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे values मिल रही हैं variables की which satisfy these linear equations simultaneously. Now next we have inconsistent system. अब एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है. कुछ सिस्टम ऐसे भी होते हैं जिनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वेरिएबल्स की कोई भी ऐसी वैल्यू हमें नहीं मिलती फॉर विच ऑल द लीनियर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली. तो उस केस में उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता एंड वी से दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स का एग्जांपल है. इस टाइप का जो सिस्टम है इसमें x और y की हमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलती जिससे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए साइमल्टेनियसली. Hence the system is having no solution and because it is having no solution तो हम कहते हैं कि सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है. Hence लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम होगा उसके पास या तो एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली यूनिक सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस एट ऑल. तो तीन टाइप के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. हमारा बेसिक पर्पस क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, यानी कि अननोन्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना. और वी से दैट अगर मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो मैट्रिक्स x जो थी, अननोन्स की जो मैट्रिक्स हमने बनाई थी फ्रॉम द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दैट मैट्रिक्स वी हैव टू फाइंड आउट. सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मींस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब कि वी हैव टू फाइंड दिस मैट्रिक्स x बाय यूजिंग द कांसेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस. Now we have various methods to do that. हमने डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया, then we named that method as Cramer's rule. Then we have the matrix method, यानी कि इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने सिस्टम को सॉल्व किया. Then we have the Gauss elimination method and rank method. So first two methods we have discussed earlier. Let us move to these two methods. सबसे पहले हम लोग Gauss elimination method की बात करते हैं. What is Gauss elimination method? Gauss elimination method में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में. बेसिकली दिस इज द ओनली स्टेप व्हिच वी हैव टू डू. यहाँ पर सबसे पहले जब भी हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएंगे तो हमें उसे एक मैट्रिक्स इक्वेशन में रिड्यूस करना है. सबसे पहले जो मैट्रिक्स होंगी a, x एंड b, a, x एंड b मैट्रिसेस को फाइंड आउट करने के बाद इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इस मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज वी नीड टू हैव मैट्रिसेस हियर टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो इस वजह से इस सिस्टम को हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे. कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए फॉर्म करेंगे, अननोन मैट्रिक्स x एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स b, ये तीनों मैट्रिसेस फॉर्म करने के बाद उस पर्टिकुलर सिस्टम को इस टाइप की एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए. गॉस एलिमिनेशन मेथड में मुझे क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, अननोन्स की जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेसिकली जब हमारे पास ये मैट्रिक्स इक्वेशन आ जाएगी. तो हमें क्या करना है? मैट्रिक्स सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखते हैं.
कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मुझे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड से अगर मुझे इस सिस्टम को सॉल्व करना है देन व्हाट आई विल डू इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करूंगी। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को फॉर्म करने के बाद उसे हमें अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करना है। जैसे हमने ट्रायंगुलर मेथड देखा था रैंक को फाइंड आउट करने के लिए, उसमें हमने मैट्रिक्स को ट्रायंगल अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस किया था। इसी तरह से यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम लोग फॉर्म करेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को फॉर्म करने के बाद उसे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करना है बाय यूजिंग ओनली द रो ऑपरेशंस। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद एक्स सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमें अननोन्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। To illustrate this method, let us solve some of the problems. तो यहाँ पर we are having three equations in three unknowns. Three unknowns are there x, y and z and there are three linear equations. System of linear equations को हमें solve करना है by using the Gauss elimination method. And secondly, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये system homogeneous है या फिर non-homogeneous. This system is in its standard form. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी variable terms हैं they are on one side and the constant terms are on the one side. So this system is a standard form. It is in standard form. And then the system is a non-homogeneous system. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी constant terms हैं all are zero. That is why this is a non-homogeneous system. इस non-homogeneous system का मुझे solution find out करना है। उसके लिए सबसे पहले मैं coefficient matrix A, unknown matrix B and unknown matrix X and constant matrix B को मुझे find out करना है by using the system of linear equation, ताकि मैं system of linear equation को AX is equal to B टाइप की मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मैट्रिक्स A को फाइंड आउट करते हैं which is a coefficient matrix. The coefficient matrix A will be formed as, यहाँ पर unknowns जो हैं उनके coefficients को कॉलम वाइज लिखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हैज द कोफिशिएंट 1 फॉर x, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है। सो दिस इज वन कॉलम। सेकेंड कॉलम में मुझे y के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, सो दिस विल बी -1, 2 एंड -4। थर्ड में हमें z के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, दिस विल बी 2, 3 एंड -5। तो दिस इज हाउ वी फॉर्म द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। नाउ x मैट्रिक्स कैसे बनेगी, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको कॉलम वाइज लिखना है। देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y एंड z, so we will write them column wise and we are getting the matrix X. मैट्रिक्स B कैसे फॉर्म होगी, यहाँ पर जितने भी अननोन्स हैं जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें कॉलम वाइज लिख लेते हैं 3, 5 एंड -13. This is how we write the matrices A, X and B and this system is now written as AX is equal to B. Now या तो ये सिस्टम लिखेंगे या फिर this is the matrix equation, both will represent the same thing. This matrix equation where matrix A, X and B are these represent the system of linear equation. Now we just have to find out the matrix X. Matrix X को find out करने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले AX is equal to B टाइप की इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम लोग AX और B की वैल्यू पुट कर देते हैं सबसे पहले। So the system of linear equation is been converted into this matrix equation and इस matrix equation में AX और B matrices की values को put कर देंगे, so we will be getting this. अब हमें क्या करना है, इस matrix A को upper triangular form में reduce करना है for finding out the solution using the Gauss elimination method. तो हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशंस का यूज करेंगे और इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। साथ ही साथ जितने भी रो ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो सभी रो ऑपरेशंस हमें मैट्रिक्स बी पर भी अप्लाई करने हैं, ऑल इन द सक्सेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द लीडिंग डायगोनल। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म मींस a matrix is in upper triangular form if this is the leading diagonal and leading diagonal के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं below the leading diagonal all the elements should be 0. तो इस मैट्रिक्स को हमें अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज द लीडिंग डायगोनल, इसमें फर्स्ट एंट्री है 1। इस फर्स्ट डायगोनल एंट्री के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 0 करना है बाय यूजिंग द रो ऑपरेशंस ओनली। सो फर्स्ट केस हम क्या करेंगे, दिस 1 एंड दिस 3 वी विल reduce them to number 0 by using the row operation. So let us apply these row operations. R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus 3R1.
तो इन दोनों ऑपरेशंस को अगर मैं मैट्रिक्स ए पर ऑपरेट करती हूँ देन वी विल गेट जीरोस एट दीज टू प्लेसेस। तो आफ्टर ऑपरेटिंग दिस, अब ये जो ऑपरेशंस है ये मैट्रिक्स ए पर भी ऑपरेट करने हैं एंड मैट्रिक्स बी पर भी अप्लाई करने हैं एंड दिस मैट्रिक्स विल बी एज इट इज एक्स वाई जेड अननोन हमें फाइंड आउट करना है। So after applying these operations, what we will get here is 1 minus 1 2. This will be 0 3 1 and 0 minus 1 11. So this equation will reduce to this equation. X y z as it is रहेंगे and same operations को हम मैट्रिक्स B पर अप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स B भी चेंज हो जाएगी and this will become 3 2 and minus 64 by 3. तो इस तरह से ये रो ऑपरेशंस हमने मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी दोनों पर ऑपरेट कर दिए। नाउ हियर इन दिस मैट्रिक्स दिस इज द डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ठीक है। इस लीडिंग डायगोनल में यहाँ पर दो एलिमेंट्स तो जीरो हो गए। नाउ द सेकंड डायगोनल एंट्री इज दिस, सेकंड डायगोनल एंट्री के नीचे जो भी एलिमेंट है उसे जीरो करना है। तो यहाँ पर -1 एक नॉन जीरो एंट्री है, इसे अगर हम जीरो कर दें देन होल ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी इन द अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। इसे जीरो करने के लिए हम लोग रो 2 का यूज करते हैं। So operating this operation, R3 goes to R3 plus 1 by 3 R2. तो रो 2 का यूज करके हम यहाँ पर जीरो बनाने के लिए इस टाइप का ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। आफ्टर ऑपरेटिंग दिस मैट्रिक्स A will become 1 minus 1 2 0 3 and 1. This will be 0 0 and minus 32 by 3. This will be matrix A. Matrix X as it is रहेगी एंड सेम ऑपरेशन जो हमने यहाँ पर लगाया मैट्रिक्स ए पर, सेम ऑपरेशन वी विल बी अप्लाइंग ऑन मैट्रिक्स बी। तो ये मैट्रिक्स बी भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। देयर इज अ मिस्टेक हियर, यहाँ पर -22 आएगा। When we will apply these row operation then we will get -22 here, but after applying this further row operation we will get matrix B as 32 minus 64 by 3। मैट्रिक्स ए में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, उसका लीडिंग डायगोनल ये है, लीडिंग डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट्स थे वो सबको जीरो कर दिया। दिस मींस दिस इज द ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए को हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। वैसे रिड्यूस करने के बाद डायरेक्टली इस मैट्रिक्स इक्वेशन को फिर से लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लें। पहले हमने क्या किया, इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट किया ताकि हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस कर पाए। और जो भी ऑपरेशंस हमने यहाँ पर यूज किए रो ऑपरेशंस, सभी रो ऑपरेशंस हमने बी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई किए। अब यहाँ पर हमने रो ऑपरेशंस ही क्यों यूज किए, वो इसीलिए क्योंकि हमने एक फैक्ट पढ़ा था जब हमने इनवर्स की बात की कि एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जो भी ऑपरेशन हम लोग प्रोडक्ट मैट्रिक्स पर लगाते हैं वही सेम ऑपरेशंस हम लोग प्री फैक्टर पर लगा सकते हैं इफ दीज आर द रो ऑपरेशंस। यानी कि एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स यहाँ पर a इंटू एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए और एक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मैट्रिक्स बी आ जाती है। और मैट्रिक्स बी को हम ये भी कह सकते हैं दिस इज अ प्रोडक्ट मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स पर जो भी रो ऑपरेशंस हम लोग लगाएंगे सेम रो ऑपरेशंस को हम इस प्री फैक्टर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर रो ऑपरेशंस का यूज किया बिकॉज वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। नाउ आफ्टर रिड्यूसिंग दिस मैट्रिक्स ए टू ट्रायंगुलर फॉर्म हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है इसे फिर से लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे। इस मैट्रिक्स इक्वेशन को फिर से लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल इक्वेट दिस ऑल द एलिमेंट्स टू दिस मैट्रिक्स एंड वी विल गेट 3 लीनियर इक्वेशंस अगेन। तो यहाँ पर x minus y plus 2z is equal to 3. This is the first equation. Second equation क्या होगी, this will be 3y plus z is equal to 2 and third equation would be minus 32 by 3z is equal to minus 64 by 3. तो यहाँ से हमारे पास फिर से 3 इक्वेशंस आए। पहले हमने ओरिजिनल इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर हमने मैट्रिक्स इक्वेशन में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद फिर से ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन आई इसे हम लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं, थर्ड इक्वेशन से डायरेक्टली मेरे पास z की वैल्यू आ रही है। इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ z एज 2। z की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इस सेकंड इक्वेशन में हम लोग z की वैल्यू को अगर पुट कर दें सो दिस विल बी 3y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई, y एंड z की वैल्यू पता चल गई। तो इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में y और z की वैल्यू पुट कर देंगे, देन वी विल बी गेटिंग x एज -1।
तो यहाँ से इस तरह से मैट्रिक्स ए को हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस किया एंड देन वी आर हैविंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन से डायरेक्टली एक अननोन की वैल्यू आ गई, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन हमने किया, बाकी दोनों इक्वेशंस में y और z की वैल्यूज पुट की और हमारे पास ऑल द थ्री अननोन्स आर देयर, x is equal to -1, y is equal to 0 and z is equal to 2. This is the solution to the system of linear equation by using the Gauss elimination method. Now let us have one more problem here. हमारे पास फिर से 3 equations and 3 unknowns हैं। इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है to find out all the solutions. That means we have to find out all the values of x1, x2 and x3. It will be satisfying all these 3 equations simultaneously. And this we will be doing using Gauss elimination method. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल ax is equal to b यानी कि इस टाइप की मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ax is equal to b टाइप की जो इक्वेशन होगी उसमें अगर मैं इसे रिड्यूस कर दूं then what will be matrices ax and b. मैट्रिक्स a जो होगी उसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। It will be formed from the coefficients of all the variables written in column. तो फर्स्ट कॉलम विल बी x के कोफिशिएंट, सेकंड कॉलम में हम x2 के कोफिशिएंट्स लिख देते हैं एंड थर्ड कॉलम में हम लोग x3 के कोफिशिएंट लिख देते हैं। सो दिस विल बी आवर मैट्रिक्स A व्हिच इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स X कैसे बनेगी, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x1, x2 एंड x3, राइटिंग देम इन द कॉलम फॉर्म x1, x2 एंड x3, दिस विल बी आवर मैट्रिक्स X। नाउ व्हाट इज द मैट्रिक्स B? मैट्रिक्स B में जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होंगे उन्हें हम कॉलम वाइज लिख दें, सो दिस विल बी द मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स A is this, मैट्रिक्स X is this एंड मैट्रिक्स B is this। इस तरह से हमने जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम था उसे एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। नाउ हमें क्या करना है, फॉर यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड, मैट्रिक्स A जो कि हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसे हमें अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करना है। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब क्या, इफ दिस इज द लीडिंग डायगोनल फॉर द मैट्रिक्स A, इस लीडिंग डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं, देयर आर 3 एलिमेंट्स हियर, तीनों एलिमेंट्स को मुझे जीरो करना है। उसके लिए फर्स्ट डायगोनल एंट्री देखेंगे। फर्स्ट डायगोनल एंट्री के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे पहले उन्हें जीरो करते हैं बाय यूजिंग ओनली द रो ऑपरेशंस, बिकॉज वी नो दैट द रो ऑपरेशंस व्हिच वी अप्लाई ऑन प्रोडक्ट मैट्रिक्स, सेम रो ऑपरेशंस वी कैन अप्लाई ऑन द प्रीफैक्टर। तो रो ऑपरेशंस हम लोग A और B दोनों मैट्रिसेस पर अप्लाई करेंगे सच दैट we have to create zeros below the leading diagonal. तो first of all जो भी हमारा row operations होगा, what will be that R2 goes to R2 minus 3R1 and R3 goes to R3 minus 7R1. After using these operations to these matrices A and B, what we will be getting here 1, 2 minus 1 और R2 पर ऑपरेशन लगाया तो R2 will change, it will reduce to 0, 8, 5 minus 8 and third row will convert to 0, minus 16 and 10. तो इस तरह से मैट्रिक्स से चेंज हो जाएगी। मैट्रिक्स X will be as it is and same row operations को हम B मैट्रिक्स पर अगर अप्लाई करें it will also change and it will be 1, minus 1 and minus 2. Now if we see this matrix again, यहाँ पर ये लीडिंग डायगोनल था, लीडिंग डायगोनल के नीचे 3 एलिमेंट्स हैं, बिलो दिस वी आर हैविंग 3 एलिमेंट्स, all the 3 elements are not zero. अब यहाँ पर -16 है जिसे हमें 0 बनाना। This we will be creating 0 here using the row 2. उसके लिए हम क्या करेंगे, we will operate this operation R3 goes to R3 minus 2R2 टाइप का रो ऑपरेशन अगर मैं row 3 पे लगाती हूँ then we will get 0 here. After this the matrix A would become 1, 2 minus 1, 0, minus 8, 5, this would be as it is and this will be 0. Matrix X as it is रहेगी and matrix B पर same operation अगर मैं apply करूँ this will reduce to 1, minus 1 and 0. Now if we see here यहाँ पर this is the diagonal entry, diagonal leading diagonal, below this leading diagonal all the entries are 0. This is the triangular form of matrix A, कोफिशिएंट मैट्रिक्स A का जो ट्रायंगुलर फॉर्म है दिस इज दिस। नाउ इस ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद इस सेम मैट्रिक्स इक्वेशन को हम लोग फिर से लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू मैट्रिसेस। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं सो वी विल बी गेटिंग 1 plus 2x2
minus x3 is equal to 1. Second equation will be minus 8x2 plus 5x3 is equal to minus 1. तो यहाँ से इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वी आर हैविंग टू इक्वेशंस हियर. इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x1, x2 एंड x3. अब यहाँ पर देयर आर टू इक्वेशंस बट देयर आर 3 अननोन्स. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक अननोन को वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल पुट कर देते हैं. So for finding out the solution to this equation, let us say that x3 is equal to some constant k. k को किसी constant k के इक्वल रख देते हैं. तो if this is equation number 2, this is equation number 1, तो equation 2 में x3 की वैल्यू पुट कर देते हैं and we will solve this. Then we will be getting x2 as 1 by 8 into 5k plus 1. तो इस तरह से x2 की वैल्यू मिल गई. x3 एंड x2 इन दोनों की वैल्यूज अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x1 एज माइनस k by 4 प्लस 3 by 4. तो इस तरह से बैक सब्स्टिट्यूशन से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास x1, x2, x3 ऑल द अननोन्स की वैल्यू आ गई. नाउ हियर k इज अ कांस्टेंट. k कैन एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट टर्म है. तो k की डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आएंगे x1 and x2 and x3 के, which will satisfy the system of linear equations, and all of those values will be the solutions of the given system. So this is how we apply the Gauss elimination method. So in this lecture we studied about the basic points related to the system of linear equations. उसके बाद हमने augmented matrix A, X and B के बारे में बात की. Then we move towards the geometric interpretation की एक system of linear equations geometrically इस चीज को रिप्रेजेंट करता है एंड द सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट देम ज्योमेट्रिकली. तो वहां से हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. के बाद हमने कुछ मेथड्स डिस्कस किए जिसकी हेल्प से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. और इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड द गॉस एलिमिनेशन मेथड और उसे हमने प्रॉब्लम्स में अप्लाई. Now we are left with this rank method where we will be using the concept of rank which we have studied. कि एक particular matrix का rank कैसे find out करते हैं, by finding out the rank of certain matrices, augmented matrix और coefficient matrices के ranks को find out करके हम लोग इस system of linear equations को solve करेंगे. So this was all about today's lecture. In this lecture, if you are having any query or any doubt or whatever we have studied till now, let me know in the comment section. Till then, keep learning, keep practicing, and stay tuned.